Okay, so good morning, everyone. Now today we are going to discuss another very important topic inside of Python. So I'm gonna share my screen too. So as usual, we know very well we already set up a Python in our local machine, and we have already created a one we have created a community edition, Databricks community edition, where we can create a cluster and we run apni application. So yesterday, what we have discussed few topics we discussed games like rock paper scissor and other game name is like quiz competition. Uh, so this is my community edition Databricks. So the first activity, I'm gonna create a one cluster in it. So in compute section, we will create a compute. So today's topic, we are going to discuss functions. So I name it, my cluster name is function cluster. So it will take some time. So meanwhile, I'm gonna create a one notebook. Okay, and notebook name is function topic, introduction words function. So default language Python and cluster name is it. So let's get to start this function, and this is very important because this thing you are going to use many time in your code. Okay, so markdown. I'm just mark down this shell. I'm using a MD. So before going to learn this function, now the first you need to understand what is the use of function. Why the Python, like why other languages introduce this function? Any idea, guys? Any idea, guys? So before going to discuss this, why we use Python. So inside a Python, inside a Python, we have two types of function. We have a two types of function. Two types of functions. We have a two types of functions. Let me zoom it. These things. Two types of functions. If I'm talking about the first one is built-in functions. Built-in functions. Spelling mistake. Built still built. Built BLUIT. Sorry, yeah. BUILT. Yeah. BULIT. No, no. ILT. Yeah. I was just confused. These things. Okay. Ignore it. So built-in function and the user-defined function. Okay. User-defined functions. So these are the two types of functions, especially inside a function. So already we use this built-in function. Can you tell me the examples of built-in functions which we have used? जैसा library. हाँ, जिनका हमने यूज किया है अभी तक। कौन कौन से ऐसे बिल्ट इन फंक्शन थे जिनका हमने अभी तक यूज किया हुआ है? एनी आइडिया? रैंडम। रैंडम एक मॉड्यूल है, ओके। बिल्ट इन फंक्शंस जिनका अभी तक हमने यूज किया हुआ Loop ऐसा नहीं. है। अरे यार भूल गए यार, इतने सारे तो यूज किए हैं। अरे यार प्रिंट सबसे पहला फंक्शन ही प्रिंट यूज किया है, हर जगह तो इसी को यूज करते हैं।
ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये पाइथन हमें देता है कि यू कैन यूज प्रिंट inside it, you can pass any string anything, so it will print you. ऐसे और कौन से थे? लैन, इसमें हम कोई भी लाइक आइटरेबल चीज डाल देते या स्ट्रिंग डालते थे, कोई भी सीक्वेंस चीज, तो उसकी लेंथ प्रिंट कर देता है। लिस्ट। लिस्ट इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, टाइप कास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर हमें किसी को कन्वर्ट करना होता था, मतलब स्ट्रिंग को अगर लिस्ट में, तो टाइप कास्टिंग के लिए लिस्ट, ऐसे ही फ्लोट भी हो जाता था, ये फ्लोट भी हो जाता था, ऐसे ही आपका इंट। इंटीजर इंट। हाँ, तो ये सारे फंक्शन ही होते थे। और कैसे, और कौन से फंक्शन थे? string, एक एक सबसे मेन फंक्शन है, आप भूल रहे हो। रेंज। रेंज। string, रेंज भी इनका इनबिल्ट फंक्शन है। वेरी गुड। और कौन सा है? string, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको कन्वर्ट करे? हाँ, मे भी स्ट्रिंग भी हो सकता है, str, इसका एग्जैक्टली पता नहीं, एक बार चेक करना। और कौन सा है? टाइप, किसी भी डेटा टाइप का टाइप बताने के लिए यूज करते थे। तो ये हमारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हम लोग मतलब डेली लाइफ में हमने अभी तक यूज करते आए हैं। और आई थिंक और भी हो सकते हैं जो हमारे माइंड में आ नहीं रहे। अब कुछ ऐसे ऐसे भी फंक्शंस होते हैं ना जो आप लोगों ने कभी सुने नहीं है। अगर बात करें, कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो आपने सुने नहीं है, और ये आप लोग मेरे को कल बताओगे, जैसे ऑल फंक्शन, ये आपने कभी सुना ही नहीं है, अभी तक सुना नहीं है, मतलब मे बी आपने अभी तक हमने इसको यूज में लाया। स्काई फंक्शन, समझ रहे हो? स्काई फंक्शन हो गया आपका। और ऐसे ही हम लोग बात करें बूल फंक्शन, बूल फंक्शन, इनको अभी तक हमने बुलियन। यूज नहीं किया। हाँ, बुलियन है। इन फंक्शनों का यूज आप करोगे और मेरे को बताओगे कि पंकज इस फंक्शन का ये पर्पस है, ये इनुमरेट फंक्शन, इस फंक्शन का क्या पर्पस होता होगा। ऐसे ही फॉर्मेट तो यूज किया है, इफ यू रिमेम्बर, बता सकते हो कहाँ यूज किया है? याद आ रहा है ये फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। यार आप लोग ना पीछे का रिकॉल नहीं कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप लोग पढ़ते जा रहे हो लेकिन पीछे का नहीं कर पा रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस पे ज्यादा टाइम बिताओ, स्पेंड करो, वरना चीजें आगे जाके टफ होने वाले लग जाएंगे। जब कोडिंग करने जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा भयंकर क्या यूज करूँ क्या नहीं यूज करूँ। तो रिकॉल करो इन सब चीजों को, और ये रिकॉल तभी होंगे जब आप लोग कोडिंग करोगे, जितना अपना हैंड्स डर्टी करोगे। वरना आप मेरे से कोर्स खत्म भी कर लोगे, आप लोगों को कोडिंग नहीं आ पाएगी। तो रीजन है कि कोडिंग आप लोग अपने एंड पे करो इससे जितना हो सके। आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ तो उसको मतलब एक्टिवली करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। getter फंक्शन हो गया, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? फिर एक आईडी फंक्शन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब लर्निंग पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। यूज केसेस बहुत कम होते हैं इसके। मैप फंक्शन, इसके बहुत ज्यादा यूज केसेस होते हैं जब एज अ आप बिल्डर बनोगे, मतलब जब डेवलपर बनोगे तो इसके बहुत ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मेन फंक्शन होता है इसमें, आप कोई भी लिस्ट पास करो या सीक्वेंस पास करो, वो उसमें से सबसे लोवेस्ट नंबर दे, ऐसे ही मैक्स होता है लिस्ट के अलावा। ऐसे पावर फंक्शंस होते हैं, तो इसमें आप कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर पास करो, उनका वो दे देता है, पावर दे देता है। जैसे 2 की पावर 3 8 दे दिया उसने। प्रिंट फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज किया है। जैसे गेटर होते हैं वैसे सेटर होते हैं, सेट एट्रीब्यूट बोला जाता है। तो ये जब आप क्लासेस क्लासेस पढ़ोगे ना, तो वहां पे आएंगे। उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब वहां पे आएंगे। ऐसे और भी फंक्शंस होते हैं, शॉर्टेड होते हैं, ये शॉर्ट करके दे देता है आपको कोई भी लिस्ट या स्ट्रिंग। तो ये हमारे बहुत सारे मतलब लिस्ट है जो अभी तक आपने पढ़े नहीं, और आई होप कि आप लोग इनको आ, आज जाओ इसको पढ़ो, इसको मतलब देखो कि ये एग्जैक्टली है क्या। इन ये सारे इन बिल्ट इन फंक्शन। सो इसके अलावा ऐसे अगर बात करें यार, ये कितने बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करवाता है? जहां तक मेरे को याद है 65 या 68 समथिंग बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इनके अंदर। 65 से अप्रोक्स 65 या 66 लगभग बिल्ट इन फंक्शन इनके पास होते हैं। तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि इतने इनके पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो हमारी बात आ रही थी कि यार हम लोग जैसे प्रिंट को इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम लोगों को पता नहीं था कि यार ये प्रिंट है क्या, मतलब एग्जैक्टली हम इसमें कुछ भी पास करते हैं लिस्ट में। जैसे हम जैसे कि क्या बोले, रेंज में हम कुछ रेंज पास करते थे तो और वो पूरी उसकी रेंज प्रिंट करवा देता था।
तो हमारे लिए एक तरीके से ब्लैक बॉक्स है ये सब। हमें समझ ही नहीं आ रहा भयंकर क्या कर क्या रहे हैं हम। इसमें कुछ कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं, इट विल गिव अस आउटपुट। एम राइट? तो हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स है, जैसे झूला झूलता है और परछाई में दिखता है कि भूत है उसमें। तो मतलब इसके बैकएंड का प्रोसेस हमें नहीं पता है। समझिए कि इसके बैकएंड में क्या हुआ होगा, क्या ऐसा लॉजिक लिखा होगा, है ना? तो और जिससे हम इसको ये इनपुट दे रहे हैं तो ये हमें आउटपुट ये दे रहा है। तो ये हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम कर रहा है। तो हमारा पहले ही कंसर्न आता है कि यार फंक्शन जो है, मतलब इसका यूज क्या है, मतलब क्यों इसको लाया गया है? एनी आइडिया गाइस? बार बार यूज कर रहे हैं तो व्हाई डू हैव टू डिफाइन इट एवरी सिंगल टाइम? तो एक लाइब्रेरी जैसा बना देंगे, राइट? एग्जैक्टली जैसे, तो फिर लूप लूप किस काम आता है? लूप किस काम आता है मतलब? हाँ, लूप और आपने बोला कि एक काम हम बार बार कर रहे हैं, है ना? तो फिर लूप किस प्रोग्राम पर? लिखेंगे तो फिर प्रिंट का डेफिनेशन देंगे क्या? यू कैन कॉल इट ना, लाइब्रेरी में इसको एक बार डिफाइन करके स्टोर कर देंगे तो बार बार उसको हाँ, कॉल कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। लेकिन लूप क्या काम करता है, फॉर लूप क्या काम करता है? फॉर लूप उस प्रोग्राम के अंदर जो हमने कंडीशन दे उसमें ही घूमते रहता है बस। एग्जैक्टली। सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फॉर लूप है, उसमें हम लोग अगर किसी एक एक्टिविटी को मल्टीपल टाइम्स करवाना चाहते हैं, है ना, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो फंक्शंस होता है, जो आपने बोला कि हम अगर किसी लाइब्रेरी में इसको डिफाइन कर देंगे, करेक्ट है, उसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नहीं, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग अगर जितनी बार यूज करना चाहते हैं उतनी बार यूज कर सकते हैं। तो जो फंक्शंस होता है उससे जनरली हम एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करना चाहते हैं, और किसी लाइब्रेरी में अगर हम डिफाइन कर दें तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे रैंडम रैंडम मॉड्यूल था, लाइब्रेरी थी वो एक रैंडम, उसके अंदर एक चॉइस मेथड था। एग्जैक्टली उस चॉइस मेथड में क्या हो रहा था कि वो हमारा कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा के ला रहा था और हमें पता नहीं चल रहा था। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको देसी सा एग्जांपल दूं, आप लोगों ने, देसी सा नहीं है, मतलब टेक्निकली है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कि हम लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते थे, इफ यू रिमेम्बर, है ना? सो डू यू नो द फॉर्मूला कि अ, 32। कि कैसे कन्वर्ट किया जाता था? हाँ, 0 is 32 ना। 0 is 0C is 32F। तो अगर उसका लॉजिक हमें याद है तो ऐसा होता था, एफ फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना होता था तो 9 डिवाइडेड बाई 5 समथिंग, है ना, और ऐसा इनटू सेल्सियस लिखते थे यहाँ पे, और प्लस 32, ये हमारा एक्टिविटी करके देता था। एम राइट? तो ये हमारा मतलब कन्वर्ट करके देता था फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, मतलब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दे देता था। ठीक है। तो अगर अगर मान लो अगर हम एक सिंगल डेटा के लिए कर रहे हैं, मतलब यू राइट अ प्रोग्राम इन विच सेल्सियस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट, लेकिन अगर इसको आपको मल्टीपल टाइम्स करना होगा तो यू यू आर नॉट गोइंग टू राइट मल्टीपल टाइम्स दिस थिंग। एम आई राइट? आप अगर मान लो आपके पास बहुत सारी एक सेल्सियस की वैल्यू, तो इट इज वर्किंग फाइन कि ठीक है, मैं ऊपर सेल्सियस की वैल्यू को डिफाइन कर देता हूँ, तो इट इज वर्किंग फाइन कि अगर मान लो मैंने एक सेल्सियस की वैल्यू को कुछ समथिंग 78 दे दिया, तो इट विल गिव मी अ फ़ारेनहाइट वैल्यूज कन्वर्ट करके। बट सेम एक्टिविटी इफ आई गोना डू मल्टीपल टाइम, अगर मैं सेम एक्टिविटी को मल्टीपल टाइम करने गया, तो it will be like a problem for me to writing this formula again and again. Okay? इस एक्टिविटी को करने के लिए तो बेटर है कि मैं क्यों ना इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन कर दूं, और फंक्शन मेरा वो सारा का सारा काम करे। ठीक है। तो मतलब अगर मान लो मैंने मेरे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हैं। ठीक है। तो उस मल्टीपल वैल्यूज को मैं इसमें पास कर दूं, मतलब फंक्शन को पास कर दूं, तो फंक्शन मेरे को उस लिस्ट के लिए सारी मतलब उस लिस्ट में जितने भी सेल्सियस है उनको कन्वर्ट करके मेरे को फ़ारेनहाइट में दे देगा। तो अगर बात किया जाए कि व्हाट आर फंक्शंस, सो फंक्शंस
सो फंक्शंस क्या होते हैं जनरली आपके? फंक्शंस प्रोवाइड a way to break problems, break a problem or a process, या प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसकी दो फिलॉसफी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। प्रोसेस डाउन इनटू स्मॉलर 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 एंड इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड, स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड। तो इसकी दो फिलोसफी बताऊंगा कि ये ऊपर वाली फिलोसफी से तुम अभी जो बताया उससे तो अचीव कर सकते हैं, ये चीज लूप भी कर सकता है। एम आई राइट? ये चीज लूप भी कर सकता है कि हम अगर लूप में पास कर दें और लूप क्या करे, लिस्ट पास करे तो वो सारा काम कर देगी। ये लूप भी काम कर सकता है, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना वो और क्लियर कर देगी हमारी चीज को, क्योंकि ये एक्टिविटी अगर मैं लूप में भी डाल दूंगा ना और लूप को एक लिस्ट बोलूंगा आइटरेट करने के लिए, वो हर एक लिस्ट के एलिमेंट को कन्वर्ट कर देगा और काम कर देगा। लेकिन बात आ रही है यहाँ पे, मैंने क्या बोला? फंक्शन प्रोवाइड अ वे टू ब्रेक अ प्रॉब्लम आर प्रोसेस डाउन इनटू अ स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड। ठीक है? तो या बोल सकते कोई पूछे फंक्शन क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क। एम आई राइट? तो लेकिन इसके इसके पीछे ना दो फिलॉसफी है। बहुत कम लोगों को मतलब अगर पूछा जाता है ना, वो बहुत कम लोग इसके पीछे जवाब देते हैं कि क्या दो फिलॉसफी। इग्नोर द स्पेलिंग एंड ऑल दैट। जो दो फिलॉसफी है ना, वो एक एब्स्ट्रक्शन है, एब्स्ट्रक्शन एंड डिकम्पोजिशन। अगर कोई भी आपसे पूछे ना, ये दो टर्म बोल दो ना, तो समझेगा आपको फंक्शंस का आइडिया है। तो पहली बात करें कि एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन, से क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आपने कभी पढ़ा है? ये ऊप्स में भी आएगा ये कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? जैसे कि यार मुझे बैकएंड का प्रोसेस पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। मुझे सिर्फ, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि ये स्टीयरिंग है और ये गियर है, इससे चेंज हो रहा है, लेकिन आपको बैकएंड का पता ही नहीं है भाई क्या हो रहा है। समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है बैकएंड का नहीं पता आपको। आपने अभी तक बिल्ट इन फंक्शन जितने भी ऊपर देखे हैं, आप इनमें कुछ वैल्यूज देते हो और उसका कुछ आउटपुट आता है। आपने मान लो लैन लैन फंक्शन के अंदर आपने लिस्ट दिया, और लिस्ट लिस्ट के हर एक एलिमेंट को वो क्या करते हैं, जैसे सम फंक्शन होता है, सम भी लिखना भूल गया मैं। सम में आप कोई लिस्ट पास करते हो तो लिस्ट के सारे एलिमेंट का सम कर देता है। तो बैकएंड में कुछ ना कुछ कर रहा होगा, आइटरेट कर रहा होगा, दोनों वैल्यूज को जोड़ रहा होगा, फिर फाइनली दे रहा होगा। तो आपको बैकएंड का प्रोसेस नहीं पता है, एब्स्ट्रैक्शंस। तो फंक्शंस को जनरली यूज किया जाता है एज अ पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। या आपने मान लो एक लाइब्रेरी बनाई, जो अभी संदीप ने बोला, बेसिकली वी कैन डिजाइन अ वन लाइब्रेरी, इनसाइड इट वी डिफाइन मल्टीपल फंक्शंस, और हर एक फंक्शंस का अपना अपना कोई तरीका है। तो आप उन फंक्शंस को कॉल करते हो डायरेक्टली और यू कैन यूज। तो आप जब अ, अभी आप बिगनर हो तो आप लोग बिल्ट इन फंक्शंस को यूज कर रहे हो। आगे जाके आप ना खुद के फंक्शंस बनाओगे, खुद के। अगर आपको कोई बड़ी एप्लीकेशन अचीव करनी होगी ना, आप अपने खुद के फंक्शन बनाओगे, और उन फंक्शंस को आप अपने कोड में मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो, तो आप उनको मल्टीपल टाइम कॉल करोगे एंड यू कैन फुलफिल योर पर्पस। समझ रहे हो? फॉर लूप से क्या हो रहा है, आपने वहां पे फॉर लूप लिखा, वो काम अचीव हो गया, लेकिन अगर वही सेम एक्टिविटी मेरे को कहीं और दूसरे मॉड्यूल में करनी पड़ेगी, मतलब अगर मान लो मैं 10-15 मॉड्यूल किसी बड़ी एप्लीकेशन को अचीव करना चाह रहा हूँ, और वही एक्टिविटी मेरे को किसी दूसरे मॉड्यूल में चाहिए हो, तो आई एम नॉट गोना रिपीट माई कोड। तो यहाँ पे फंक्शंस की एक और करेक्टरिस्टिक्स आती है कि रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड मतलब मैं एक कोड, मतलब जो फंक्शन मैंने बनाया है उसको मैं रीयूज कर पाऊँ, मतलब उसको मैं दोबारा यूज कर पाऊँ। दैट इज व्हाट आई वांट, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब मैं अपने कोड को दोबारा यूज कर पाऊँ। तो ये एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, लूप से भी अचीव कर सकते हैं, फंक्शन से भी। फंक्शन के अंदर भी हम काम लिख दें और फंक्शन हमें ये काम करके देगा। अगर देखो, जैसे कि बात की जा रही है, एक सिंपल सा है, अगर बात की जा रही है, मान लो जैसे कि एक लिस्ट है मेरे पास, माई माई
टेम्परेचर, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है टेम्परेचर की, और टेम्परेचर में मैंने दे दिया 78, 67, 45, ये पास कर दिया। अगर यही चीज मैं फॉर लूप से करूं, फॉर आई इन माई टेम्प, यहाँ पे आई ट्रेबल देते हैं तो आई ट्रेबल चीज आ जाएगी। और अपना अपन लोग अपना लॉजिक लिख लेते हैं। लॉजिक जैसे कि हमारा ये सेल्सियस है तो हमें फ़ारेनहाइट चाहिए, तो ये हुआ। और हमने क्या किया, सेल्सियस है, जो भी आई है, आई को इनटू करेंगे, और 1.8 होता है अगर उसको कन्वर्ट करोगे, और प्लस प्लस आई, नहीं प्लस 32, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये प्रिंट एफ करके देंगे। तो ये हमारा कोड हमारा गोल अचीव कर रहा है। और सेम चीज अगर मैं फंक्शन से अचीव करना चाहूँ तो फंक्शन भी मेरे को करके दे देगा, ये मेरे हर एक एलिमेंट को कन्वर्ट करेगा और उनको प्रिंट करके दे देगा कि भैया 78 ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर सेम चीज अगर मैं उसके थ्रू करना चाहूंगा, फंक्शन के थ्रू, तो अगर फंक्शन के थ्रू करूंगा तो मैं फंक्शन, अभी ये सिंटेक्स मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि क्या लिखा है, मैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे फंक्शन का मैंने नाम बनाया कि कन्वर्ट 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 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, एक फंक्शन बनाया मैंने और एंटर दिया। और सेम चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, ये कोड मैं सेम चीज यहाँ पे लिख दूं, ये सेम चीज, और अपने फंक्शन को कॉल कर दूं। मेरे फंक्शन का नाम क्या है, कन्वर्ट कन्वर्ट सी एफ, इसके अंदर मैं पास कर दूं अपना माई टेम्प, मेरी जो लिस्ट थी। तो ये सेम, और इसको यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ आई, जो आई दे दिया, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो सेम सेम चीज है कि ये फंक्शन भी मेरा वही काम करेगा जो ऊपर वाला काम कर रहा है, समझ रहे हो। कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाई नॉन टाइप ऑफ फ्लोट, व्हाट हैपन, माई टाइम माई कन्वर्ट में मैंने अपना टेम्परेचर पास किया। अच्छा, मतलब मेरे को इसको 1/1 कैन नॉट मल्टीप्लाई, अच्छा सीक्वेंस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो या तो आप ऐसे कर लो, फॉर फॉर आई इन माई, हाँ ठीक है। अच्छा ये नन नन रिटर्न कर, ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर रहा है, ये बाद में बताऊंगा नन क्या आता है। ठीक है, ये नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो नन रिटर्न करता है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करके मेरे को दे रहा है। तो यार हम बात कर रहे थे कि एब्स्ट्रक्शन एंड डिकम्पोजिशन की और रीयूजेबिलिटी कोड की। अगर हमें मतलब कि मतलब अगर सेम फंक्शन हमें मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। और डिकम्पोजिशन, जैसे यार हमें कोई भी बड़ी एप्लीकेशन अचीव करनी होती है ना, मान लो आपको कोई बड़ा टास्क अचीव करना होता है, तो आप ना अपने कोड को ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हो। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ना, फंक्शन प्रोवाइड अ वे टू ब्रेक प्रॉब्लम आर प्रोसेस डाउन इनटू अ स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड। तो जैसे कि आपने वो एवेंजर मूवी देखी है, एक एक विलन को हराने के लिए सारे सुपर हीरोज मिल जाते हैं और उसको हराने लग जाते हैं। तो वैसे ही फंक्शंस काम करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड्स या फंक्शंस बोल सकते हैं, जो कि मिलकर एक बड़ी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं या उसको बीट करने की कोशिश करते हैं, या कि हम अचीव कर लिया हमने। अब जैसे भी ले लो कि एक छोटे छोटे, तो सबकी अपनी अपनी सुपर पावर है, किसी को कैसी सुपर पावर है, किसी को कैसी है, और वो सब मिलकर एक एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं जिससे हम लोग विलन से लड़ सके, रियल टाइम रियल टाइम गोल को अचीव कर सके या रियल टाइम टास्क को अचीव कर सके। सो वी कैन डू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। सो फंक्शन क्या है कि function provide a way to break problems or a process down into a smaller and independent blocks and abstractions. Okay, अब बात आती है कि ये तो हुआ हमारे लिए फंक्शन। अब अगर इसके बात करें कि
फंक्शन है क्या, तो इसमें अगर 2-3 पॉइंट और ऐड कर दूं मैं इसी के नीचे, यहाँ पे 2-3 पॉइंट और ऐड कर दूं, तो बोल सकते कि a function is a block of organized reusable 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 code 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 that is used to perform some task, that is used to perform some task, या स्पेसिफिक टास्क बोल सकते हो। ठीक है, मतलब हर एक फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क अचीव कर सकता है। और अगर इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें, अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूं, तो इट इज यूजुअली कॉल्ड बाय इट्स नेम व्हेन इट टास्क नीड एग्जीक्यूशन। मतलब अगर आपने 10 फंक्शंस बनाए, अभी हम एक एग्जांपल देते हैं कैलकुलेटर का। तो जैसे कि एक फंक्शन मेरा होगा ऐड का, जो मेरे को ऐड करके देगा, एक फंक्शन होगा जो सब्ट्रैक्ट है, वो सब्ट्रैक्ट करके देगा, एक फंक्शन है जो मुझको, तो लेकिन अगर जो फंक्शन मेरे को अचीव करना होगा ना, जो भी टास्क अचीव करना होगा, मैं उस फंक्शन को उसके नाम से कॉल करूंगा और वो मेरी एक्टिविटी को करके दे देगा। सो यू कैन ऑल्सो पास वैल्यू और मतलब तुम उसके अंदर वैल्यू भी पास कर सकते हो, उनको बोला जाता है क्या बोला जाता है, फंक्शन विद आर्गुमेंट बोला जाता है, जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे। एंड इट रिटर्न अ रिजल्ट, आप रिजल्ट रिटर्न भी करवा सकते हो। इनको मैं लिख नहीं रहा हूँ, इनको प्रैक्टिकली बताऊं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में देखा है। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं कि यार हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने एक बात कही, क्या क्या बात कही कि जैसे कि एक कैलकुलेटर का एग्जांपल देखते हैं, तो अभी इसका सिंटेक्स भी बता देता हूँ कि इसका सिंटेक्स है क्या। तो इसको जनरली किससे यूज किया जाता है, इसमें एक कीवर्ड होता है, और आपको मैंने ऑन द डे फर्स्ट बता दिया था। जो कीवर्ड हम यूज करते हैं वो रिजर्व कीवर्ड होता है, एंड वी कैन नॉट यूज फॉर वी कैन नॉट यूज दैट कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल्स एंड ऑल दैट, बिकॉज ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं। उस कीवर्ड का नाम होता है डेफ। ठीक है, तो जो भी आप अपने फंक्शन का नाम दे रहे हो ना, उस फंक्शन से पहले लिखना चाहिए इसको। अभी मेरे फंक्शन का नाम है कि मैं सम करवाना चाहता हूँ, है ना, तो मैं अपने फंक्शन के नेम से पहले इसको लिखना होगा मुझे हमेशा। कीप इट इन योर माइंड कि मेरे को इसको अपने फंक्शन के नेम से पहले लिखना होगा, और फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, जो मेरा फंक्शन होगा ना, एंड इट इज फॉलोड टू बी अ बाय पैरेंथेसिस होगा, एंड बिफोर मतलब कॉलन देना होगा। ये कॉलन क्या होता है, इंडेंटेशन होता है, जो ऑन द डे फर्स्ट व्हेन वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स, एंड आई टॉक्ड अबाउट लाइक इंडेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे, वो इस फंक्शन ये फंक्शन उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे लूप के केस में कि या इफ के केस में कि अगर उस इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो वो उतनी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। सेम चीज यहाँ इंडेंटेशन, अदर लैंग्वेजेस में कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता था, यहाँ पे ये इंडेंटेशन का यूज किया जाता है, कि ये बताता है कि अगर ये चीज सही है तो दिस पोर्शन ऑफ कोड इट विल गोना एग्जीक्यूट। ठीक है, सो ये हमारा सम का फंक्शन है, और इस सम में हम लोग क्या करवा रहे हैं कि मतलब ये फंक्शन हमें सम करके दे रहा है कि दो नंबरों का ये हमें सम करके दे देगा। तो इस फंक्शन को अगर मैं रिटर्न टाइप बना दूं, तो मैं रिटर्न लिख दूं, रिटर्न लिख सकता हूँ, या नहीं रिटर्न ही मीन लिखो, प्रिंट ही करवा दो, सिंपल। और अगर कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, तो मैंने बताया स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करो, सबसे अच्छा तरीका है अपने चीजों को लिखने का। तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स टू नंबर्स टू नंबर्स इज, तो आप इसमें कर्ली ब्रेसेस इसमें लिख सकते हो a+b, मैं दो नंबरों का सम है। तो मैं इसको आर्गुमेंट टाइप बना रहा हूँ कि इसमें यार दो वैल्यूज आए। इसको ऐसे मैं बहुत सारे फंक्शंस बना सकता हूँ, और उनसे मैं अपना टास्क अचीव कर सकता हूँ। तो अगर आप देख रहे होगे, मैंने बहुत सारे फंक्शंस बनाए, ऐसे ही मैंने सब का बना लिया, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बना लिया, इसको भी दो वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये मेरे को क्या करके देगा, सब्ट्रैक्ट करके देगा।
ठीक है, ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्ट की जगह मल्टीप्लिकेशन का बना देता हूँ, मल फंक्शन बना देता हूँ, है ना। मल फंक्शन बना, इसको 2 नंबर दिया है तो ये मेरे को मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा, ऊपर वाला मेरे को सब्ट्रैक्शन करके दे देगा, और ये वाला मेरे लिए डिवाइड का काम करेगा, डिव, ठीक है। ये वाला मेरे लिए डिवीजन का काम करेगा, जो भी है, ठीक है। तो ये मेरे को वो काम करके दे देंगे, ठीक है। अभी ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो, कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, चल गया ना मेरा क्लस्टर, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये इनका काम क्या है बेसिकली, ये फंक्शन अभी हमारे मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहे, अभी ये मेरे लिए क्या है, मतलब कि ऐसा डिफाइन किए गए हैं, ये सिर्फ डिफाइन किए गए हैं। तो ठीक है, और हर एक फंक्शन क्या कर रहा है, वह, जस्ट वेट गाइस, हाँ, sorry guys. So here you can see that I have defined 4 function, and 4 function perform a some specific task, और ये अभी डिफाइन किए गए हैं, वी आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। सो अगर मेरे को अभी जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी ना, क्या बोला था कि इट यूजुअली कॉल्ड बाय इट्स नेम व्हेन इट्स टास्क नीड्स एग्जीक्यूशन, जब इसके टास्क को जरूरत होगी, जो भी आप कोई स्पेसिफिक काम करना चाहते हो, आपको सम चाहिए, तो आप इसके नाम से इसको कॉल करेंगे एंड यू विल अचीव योर गोल गोल। गॉट इट। सो अब अगर हम बात करें कि हाउ हाउ वी आर गोना कॉल कॉल दीज फंक्शन, सो अगर जैसे कि मेरे पास 2 नंबर है, अगर मेरे पास 2 नंबर है, मान लो ए नंबर है 90 है और बी नंबर है 67, तो अगर मेरे को जैसे कि मल्टीप्लीकेशन चाहिए इनका, तो मैं मल फंक्शन को कॉल करूंगा, मल, और उसके अंदर मैं अपने ए और बी पास कर दूंगा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आप जरूरी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तुम एक्स रख लो, इससे कंफ्यूज मत होना। ये आर्गुमेंट एक्स और वाई है, तो आपने अपने मल फंक्शन को एक्स एंड वाई दिया, और ये एक्स वाई वहां के ए और बी को असाइन हो गए होंगे, इस ए और इस बी को। तो मल फंक्शन क्या करेगा, दोनों नंबरों का मेरे को मल्टीप्लीकेशन करके दे देगा। सॉरी, द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, ये एक्चुअली में इसने मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना डिवीजन, मैसेज मैंने गलत प्रिंट करवाया, सॉरी गाइस। तो ये मल फंक्शन से डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने मल लिखा है, लिखा हुआ है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, कूल। ठीक है, नाउ अगेन आई एम गोना डू दिस एक्टिविटी। आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका इसने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दिया इजी लैंग्वेज में। अगर मैं यहाँ 100 कर दूँ तो हियर यू कैन सी दैट इट विल मल्टीप्लाई माई बोथ द नंबर्स, ओके। और एक ही फंक्शन को मैं मल्टीपल टाइम कॉल भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम है, मेरे को जितनी टाइम उसको जरूरत है मैं उतने टाइम मैनी टाइम्स उसको कॉल कर सकता हूँ, वो उतनी टाइम मेरे कोड को एग्जीक्यूट करके दे देगा। यहाँ पे सिंटेक्स एरर था, क्योंकि तो उतनी टाइम वो, जितनी टाइम मेरे को यूज करना है। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी है, मतलब आप चाहो तो अपने फंक्शन को मल्टीपल टाइम मल्टीपल प्लेस में यूज कर सकते हो, जो कि फोर लूप के थ्रू नहीं हो सकता था। फोर लूप सिर्फ एक ही बार में एक ही आपका टास्क अचीव करके दे देगा, लेकिन जो फंक्शंस होंगे जो आपने बनाए हैं, वो आप कहीं पे भी डिफाइन करो तो वो आपको मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो। अब ये तो था कि जो भी टास्क, अभी मेरे को मल करना तो मल कॉल कर लिया मैंने, अब मेरे को सम करना है तो इट विल गिव मी अ सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों का सम कर देगा। अगर मेरे को डिव यूज करना है तो मैं डिव का यूज कर सकता हूँ, और मल्टीपल टाइम मैं कॉल भी कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल कोड रिड्यूसिबिलिटी। अब जितनी भी एक्टिविटी है ना, जैसे कि आपको इफ यू रिमेम्बर, आपने, तो ये सारी, ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये कौन से फंक्शंस हैं, ये सारे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मतलब यूजर जो फंक्शन बना रहा है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहा है। बिल्ट इन फंक्शन का तो स्पेसिफिक पर्पस है कि भाई ये फंक्शन आपको ये करके देगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहा है फंक्शन। अब जैसे कि यार, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ कि वो फंक्शन मुझे क्या करे, वो फंक्शन मुझे क्या करके दे, सिर्फ की निकाल के दे दे। तो अब इफ यू रिमेम्बर, आपने कल क्यूज कंपटीशन बनाया था, अब वो सारा प्रोग्राम अपना डिवाइड कर दो मल्टीपल फंक्शंस बना के, कि आप सिर्फ फंक्शंस को कॉल करें और वो फंक्शन आपको ये टास्क करके दे दे।
कि आपका जैसे आपने तीन चार एक्टिविटी कर, उसको हम करेंगे, उसको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे और कैसे अचीव करेंगे कि हम कहाँ कहाँ फंक्शंस बना सकते हैं और कैसे हम उसका रीयूज करना चाहिए। इसमें आपका ना दिमाग बहुत मतलब यूज होगा कि आप कैसे अपने, ऐसा कौन सा ऐसा टास्क है जिसको आप ना बाइंड करके नहीं रखना चाहते हो, लूजली कपल्ड बनाना चाहते हो, और उस फंक्शंस को आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर सको। जैसे कि अगर आप बाइंड करने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एक फंक्शन बना दिया, उसमें तीन चार टास्क अचीव करवा रहे हो, अब होगा क्या कि अगर मान लो यार किसी को सिर्फ उन तीन चार टास्क में सिर्फ एक ही टास्क अचीव करना था, तो वो उस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फंक्शन आपको साथ में वो भी रिटर्न करके देगा। एम आई राइट? क्योंकि आपने उसमें ये, तो बेटर है कि अपने फंक्शन को आप ऐसा बनाओ, लूजली कपल्ड बनाओ, कि वो टाइटली कपल्ड ना हो, कि कल के दिन अगर मैं उस फंक्शन को यूज करूं तो मैं उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करूं। आप सारे टास्क एक ही फंक्शन में अचीव नहीं कर सकते हो, आप उसको तोड़ तोड़ के अचीव कर सकते हो। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल, जैसे क्विज कंपटीशन किया था। कैन यू टेल मी लाइक हम उसको कैसे फंक्शनों में ब्रेक कर सकते हैं, कौन सा टास्क कहाँ कर सकते हो जिससे हम वो टास्क अचीव कर सकते हैं। तो यही है कि अभी तो नहीं, लेकिन मैं कल आप लोगों से पूछूंगा। तो आप गाइस क्या करना कि वो जो क्विज कंपटीशन वाला है, वो पूरा कोड ही आप लोगों को मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना के काम करना है, और मैं देखूंगा कि आपकी अप्रोच कैसी है। आपने क्यों इस वाले पार्ट को इस वाले फंक्शंस में रखा, इस वाले पार्ट को इस वाले फंक्शन में रखा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे बनाते हो। तो तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क है जो आप लोग कल करोगे अपने, सेम सेम रॉक पेपर सीजर में भी आप फंक्शंस बना के काम करोगे कि आप कैसे अचीव कर रहे हो। और वी विल कनेक्ट टुमारो ऑन दैट। ओके, so let's say come back let's come back to our ओरिजिनल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हमने देखा कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। फंक्शंस का नाम लिखना होता है, डेफ कीवर्ड का यूज होता है, और पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फंक्शन डेफिनेशन। इसको बोला जाता है फंक्शंस की डेफिनेशन, कि आपने फंक्शंस को कैसे बनाया। और अभी आपने देखा जो कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। ठीक है? तो अगर हम बात करें मतलब जो कोड अप्रोच होगी, तो आपने सबसे पहले क्या बनाया, क्रिएटिंग अ फंक्शन। आपने एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कॉलिंग अ फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो फंक्शन को क्रिएट करना जिसे आप डेफिनेशन बोलते हैं। इस डेफ का मतलब ही होता है डेफिनेशन, समझ रहे हो? तो ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ आपने जितने भी बनाए हैं ना, उसको बोला जाता है फंक्शन डेफिनेशन, कि आप लोगों ने फंक्शन डिफाइन किए। मतलब डिफाइन मतलब डिक्लेयर्ड किए कि भाई ये मेरे फंक्शंस हैं, डिफाइंड या डिफाइंड। और ये सब क्या है, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, क्रिएटिंग अ फंक्शन या फंक्शन डेफिनेशंस बोल दो। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उन फंक्शंस को कॉल कर रहे हो कि भैया आप तो मेरे को यूज करना है, कॉलिंग अ फंक्शन। क्रिएटिंग अ फंक्शन एंड कॉलिंग अ फंक्शन, टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग। और जिससे आप यूजर डिफाइन मतलब ये कोड की अप्रोच है, मतलब आप ऐसे ही करोगे। अगर आपने रॉक पेपर सीजन में जितने भी फंक्शंस बनाए, और कैसे आप उस कोड को पूरा रन करोगे उसके थ्रू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं देखने लायक होगा कि कल आप लोग कैसे पूरे कोड को फंक्शंस में डिवाइड करते हो, और फिर सेम टास्क अचीव कर सक पाओ, जैसे कि हम कर रहे थे कि हम पाइथन का कोड रन कर रहे थे। तो वो हमारे लिए वो एक्टिविटी कर रहा था कि पिक का नंबर, तो हम नंबर पिक कर रहे थे। ठीक है? तो ये अभी तरीका है, और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कैलकुलेटर जैसा, कि हमने बहुत सारे फंक्शंस बना दिए और फिर हम लोगों ने काम किया इस पे। ठीक है? अब बात आती है यार कि इसमें और भी टॉपिक्स अगर जो इम्पोर्टेंट डिस्कस करने लायक हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की जाए, जैसे कि फंक्शंस के टॉपिक्स की, इसको भी एमडी फाइल बना लेता हूँ, तो इट विल बी इजी फॉर अस, एमडी फाइल। और अगर मैं टॉपिक की बात करूं, जैसे कि कितने टाइप्स के होते हैं मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शंस कह लो, या टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, मतलब कितने टाइप से आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। इस सेंस में देख लो, टाइप्स टाइप्स ऑफ वे टाइप्स ऑफ वे टू क्रिएट अ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। क्रिएट अ फंक्शंस बनाने का तो एक ही तरीका है, मतलब उसके मेरे को एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रही, क्या बोल सकते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, आपका होता है फंक्शन फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट आर्गुमेंट एंड विदाउट
विदाउट रिटर्न टाइप। यार ये ऐसा कौन सा फंक्शन है यार जो फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट विदाउट रिटर्न। तो अगर इसकी बात करूं, जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया हेलो हेलो फंक, आपने एक फंक्शन बनाया हेलो फंक नाम से, ठीक है, और इसके अंदर आपने प्रिंट करवा दिया, कोई ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करा दिया, हाय हाय हेलो हेलो इंडिया, ये आपने एक्टिविटी करवा दी। गॉट इट। तो ये आप देखोगे ना, इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, और ना ये फंक्शन मुझको कुछ रिटर्न दे रहा है। अगर मैं इसको कॉल करूंगा ना, इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा सीधा, हेलो हेलो फंक, तो ये मेरा फंक्शन है ना, ना आर्गुमेंट इसमें पास हो रहा है। जैसे ऊपर वाले में क्या हो गया इसमें, हेलो, अच्छा इसको रन ही नहीं किया है मैंने अभी। अब ये हेलो इंडिया दे रहा है, तो इसमें ना मैं कोई आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ और ना ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख रहे थे, ये फंक्शन विद आर्गुमेंट थे, इनको एक से ज्यादा आर्गुमेंट दिए जा रहे थे, समझ में आ रहे। तो ये फंक्शन जो जो भी थे मेरे, वो ऊपर वाले ये विद आर्गुमेंट थे, और लेकिन विदाउट रिटर्न टाइप थे, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे। इनको वैल्यू दे रहे थे, ये उन वैल्यू पे एक्टिविटी करके प्रिंट कर रहे थे। तो जो पहली जो कैटेगरी आई है ना, वो मेरी कौन सी कैटेगरी है, वो मेरी कैटेगरी है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। ये मेरी पहली कैटेगरी है। कॉपी किया, यहीं पे डिफाइन कर कमेंट लिख देता हूँ कि ये जो फंक्शंस मैं बना रहा था, ये फंक्शन विद रिटर्न टाइप, इसका फंक्शन मैं यहीं पे कॉल कर लेता हूँ। फालतू का मैं एक अपना सेल बर्बाद करूंगा, उससे बेटर है कि मैं इसको यहीं पे काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये काम मेरे को ये करके दे रहा है। गॉट इट। तो अगर दूसरी एक्टिविटी की बात करूं, मैं दूसरी एक्टिविटी की बात करूं, सेकंड पॉइंट। सो दूसरा जो है मेरा, वो फंक्शन विद विद आर्गुमेंट है, और इसमें आर्गुमेंट हम एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। अभी इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप बोल सकते हो, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप। और ये वाली जो टाइप होती है ना यार, इसको भी ना फर्दर डिवाइड किया गया है, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया 2.1। जैसे कि आपके एक होता है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, ये होते हैं टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। एक होता है रिक्वायर्ड 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 आर्गुमेंट्स, ठीक है। एक होता है आपका रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, एक होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ठीक है। और एक होता है 2.3। ये सब चीजें आपको देखो किसी ने भी बताया होगा, लेकिन ये सारे टॉपिक एक चीजों में कवर नहीं होते। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और कौन से होते हैं यार, रिक्वायर्ड, डिफॉल्ट, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। और क्या हो गया 2.4, क्या कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड, और एक होते आर्क्स और क्वार्क्स, सॉरी, दो स्टार से आर्क को दिखाया जाता है, एक मिनट। इसमें अच्छा क्वार्क्स में दो स्टार लगते हैं, आर्क्स। ठीक है, इसमें भी फर्दर आता है। मैंने आप लोगों को बोला था आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में भी ध्यान देना कि ये क्यों नहीं, जब मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ तो ये ऐसा आ जा रहा है। तो इस वाले पार्ट को भी मैंने आपको बोला था ध्यान में दोनों, तो थोड़ा काम करो। तो अब इसको अचीव करते हैं कि यार ये कैसे अचीव किया जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट ना मैं बाद में कवर करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंटरमीडिएट वालों के लिए काम आता है। अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन तीन पे फोकस कर लेंगे। इस वाले के लिए मैं एक अलग सेशन है। अलग सेशन क्या है, अगर इस वाले टॉपिक को आप कवर करना चाहते हो ना, मैंने यूट्यूब में मेरा एक पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हो, तो हम लोग अपना टाइम बचा सकते हैं उसको। और लेकिन ये आपका ज्यादा यूज में भी नहीं आएगा, बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये यूज में आए, ऐसी मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट आए। है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आर्क्स एंड कॉक्स, लेकिन यूज केसेस इसका बहुत कम है।
सो लेट्स गेट अचीव कि हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिपल कोट्स में डाल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शन विद आर्गुमेंट, लेकिन इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। अभी तक ऊपर वाला क्या था, ना ही आर्गुमेंट था ना ही रिटर्न टाइप था। ठीक है, तो अगर इसको अचीव करना हो तो फंक्शन विद आर्गुमेंट, अब जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया, मैंने बनाया डेफ, मैंने बनाया हेलो हेलो नेम, मतलब ऐसा कुछ फंक्शन बना रहा हूँ, इसको नेम दूंगा मैं और ये उनको ग्रीट करेगा। मैं कुछ ऐसा अचीव करना चाहता हूँ और मैंने प्रिंट किया, मैंने लिखा इसको, जैसे कि मैंने लिखा अचीव कर लिया मैंने, एफ स्ट्रिंग से कर लो जो कि सबसे बेस्ट है हमारा। मैंने लिखा हेलो हेलो, तो मेरे बंदे का नाम है, जिस जो भी इसको कॉल करेगा, जो भी हमें समय, हेलो पंकज, पंकज फॉक्स। ठीक है, ऐसा कुछ अचीव करना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं इसको कॉल करूँ इस फंक्शन को, हेलो 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 हेलो, ये मेरा ऊपर तो मेरा फंक्शन डेफिनेशन हो गया, नीचे क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन नेम हो जाएगा, मतलब फंक्शन कॉलिंग हो जाएगा। और इसमें मैं कोई भी नाम पास करूं, जैसे कि अगर मैं पास कर रहा हूँ पंकज को, तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा रिटर्न टाइम है, ये लिख रहा है हेलो पंकज फोक्स, है ना। अगर ऐसे मैं अगर मैं इसको मैंने बताया कोड रीयूजेबिलिटी है, मतलब इसको मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो, है ना, कितने भी टाइम आप। तो अब सोचो यार, आपने आपके पास कोई मतलब आपके पास कोई टेबल है और टेबल में कोई कॉलम है नेम है, उस नेम कॉलम को आपने उठाया और इस फंक्शन को पास कर दिया, वो सारे जितने भी नेम है ना सबको एक ग्रीट मैसेज भेज देगा, ईमेल भेज देगा कि हेलो हेलो, मतलब ऐसा कुछ काइंड का, मतलब आप कोड रीयूजेबिलिटी का देख रहे हो कैसे बेनिफिट हो रहा है, कि मतलब हम कैसे उसको बार बार एक ही फंक्शन हमारे लिए सारा काम करके दे देगा, है ना। तो अगर देख रहे हो हेलो पंकज फोक्स, हेलो संदीप फोक्स, हेलो चिराग फोर्स, तो ऐसे ही अगर मान लो आने वाले टाइम में जब हम पढ़ेंगे कि किसी टेबल में किसी एक कॉलम का सारा डेटा यूज कर रहे हो और उस फंक्शन को कॉल करेंगे, वो सारी एक्टिविटी हमें करके दे देगा। समझ रहे हो भाई, ये तभी यूज में आप, तभी आप लोगों का माइंड चलेगा जब आप इसको हैंड्स ऑन करोगे। मेरे हैंड्स ऑन करने से कुछ फायदा नहीं है, आप लोगों के करने से। तो ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे पहला होता है रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। समझ रहे हो, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट मतलब कहने का मतलब है कि देख रहे हो ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन को एक अगर इसके अंदर तुमने एक आर्गुमेंट पास किया ना, तो एटलीस्ट आपको एक पास करना होगा। अगर मान लो गलती से मैंने हेलो नेम को कॉल किया, तो ये मेरे को एक एरर देगा। देखो पढ़ो क्या एरर है, हेलो नेम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। तो बोल रहा है कि भैया आपको मतलब एक आर्गुमेंट देना ही देना होगा, क्योंकि ये फंक्शन को एक आर्गुमेंट चाहिए। अगर मान लो इसमें मैंने दो पास किए होते, मान लो ऐसे अम, अम, इसमें मैंने एक हेलो पंकज फोक्स, और इसमें मैंने दे दिया होता कि योर एज इज, ऐसा कर देता, मतलब ऐसा मैंने प्रिंट कर दिया और यहाँ पे कुछ भी एज दे दिया एज, और यहाँ पे मैंने अभी देख रहे हो उसमें दो 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 नंबर और दो चीजें हैं। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, अगर मैं इसको सिर्फ नेम ही देता, नेम जैसे मैंने पास किया था, पंकज पास किया था इफ यू रिमेम्बर, तो ये मेरे को तब भी एरर देता। अगर मैं चलाऊं इसको तब भी एरर देता है मुझे। क्या एरर दे रहा है, हेलो नेम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एज, क्योंकि इसको दो चाहिए भाई, इसको दो आर्गुमेंट चाहिए। अगर मैं इसको जब तक दो आर्गुमेंट नहीं दूंगा ना, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो ये देखो अब काम करने लग गया। पहले वाले में तो प्रिंट करवा दिया हेलो पंकज फोक्स, योर योर यू आर एज इन 67, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये पहले वाले के लिए तो कर गया, लेकिन इस संदीप वाले के लिए इसने फेल कर दिया। उसने बोला कि संदीप को भी मतलब देना पड़ेगा कुछ ना कुछ एज। समझ रहे हो, संदीप को भी कुछ ना कुछ एज देना पड़ेगा, तो अब तीनों के लिए काम करेगा। समझ रहे हो, तो ये पहला जो कैटेगरी होते हैं वो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, मतलब अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन में दो तीन जितने भी पास किए हैं, उतने ही आपको फंक्शन कॉलिंग में पास करने होंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। यार आई एम टेकिंग अ पॉज, गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हेलो, हाँ यस। कहीं या डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे ना, मतलब टॉपिक क्लियर हो रहा है ना कि क्या हो रही है बातें? हाँ हाँ। या ठीक है, कूल। तो अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा है कि ये हाईलाइट अलग कलर में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग फंक्शन है इसलिए।
इनबिल्ट है। हाँ, हाँ, इनबिल्ट है। आपने थोड़ा सा प्रोनाउंस गलत कर दिया, कहने का वही सेंस है, इनबिल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हुआ? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट हुआ। कौन सा वाला? रिक्वायर्ड। इसमें जो हम अचीव कर रहे हैं वो 2.1 अचीव कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अब दूसरा आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। कॉपी। अगर हम दूसरे वाले फंक्शन की बात करें, इसको भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं, अंदर हम पेस्ट कर दें। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे? डिफॉल्ट। पहला रिक्वायर्ड के लिए था और दूसरा किसके लिए? डिफॉल्ट के लिए। यहाँ पे भी हटा देते, कंफ्यूजन ना हो क्रिएट ना। अभी नहीं हटाते, अभी रहने देते, क्योंकि नीचे भी यूज करने हैं 4 सेल में। अब डिफॉल्ट की बात आती है तो इसी चीज को हम लोग उठा के ले लेते हैं, इसी फंक्शन को उठा लेते हैं, इसी इसी से हम लोग डिफॉल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉल्ट फंक्शंस? तो अगर यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, यू आर नेशनैलिटी। और कभी भी की ज्यादा इतने बड़े नहीं होने चाहिए। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है कि मैंने डाल दिया इंडियन, समझ रहे हो? तो अगर अगर जैसे कि पहले वाले ने दे दिया मतलब अमेरिकन, सोचो मैं तो इंडियन ही हूँ, इंडियन ही हूँ। अभी आप लोग बाहर हो तो मैं आप लोगों को कैनेडियन लिख देता हूँ, कैनेडियन, सॉरी। आप लोग भी इंडियन ही हो लेकिन एनआरआई हो, आप लोगों को लिख देता हूँ कैनेडियन। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, तो ये मेरे लिए काम करेगा एज परफेक्ट, जैसे रिक्वायर्ड कर रहा था। नेम और नेशनैलिटी, तो नेम पंकज गया और नेशनैलिटी इंडियन गई, और प्रिंट हो रहा है, हेलो संदीप फोक्स यू आर कैनेडियन, हेलो चिराग फोक्स यू आर कैनेडियन। स्पेलिंग इग्नोर करना है यार, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दी, कैनेडियन, कैनेडियन जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए ये काम अच्छे से कर रहा है। लेकिन व्हाट, अगर मान लो मैं संदीप और चिराग का पास ही नहीं करता हूँ, एक आर्गुमेंट पास ही नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब ये चीज ऐसी है, तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा? अगर मान लो संदीप और चिराग की नेशनैलिटी पता ही नहीं है किसी को, पंकज की तो पता है वो इंडिया में रह रहा है, लेकिन संदीप और ऊपर चिराग से की पता नहीं, तो ये ऊपर वो जो से डिफॉल्ट है ना उसको कंसीडर कर लेगा। वो संदीप और चिराग को भी बता देगा कि ये दीज आर दे आर आल्सो इंडियन। गॉट इट? समझ में आया? हाँ, तो इसको बोला जाता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कि ये बाय डिफॉल्ट अगर आपने अगर पास किया तो आपकी वैल्यू ले लेगा, अगर नहीं किया तो आपको, इंडियन की भी स्पेलिंग गलत है, सॉरी। ठीक है, तो नहीं, अदरवाइज। एक मिनट हाँ। पंकज, ये हम्म। फर्स्ट में आ गया इसलिए सिंटैक्स एरर नहीं दिया। अगर आप पंकज का जगह संदीप पे दे देंगे इंडियन तो सिंटैक्स एरर दे देगा मेरे हिसाब से। क्यों देगा यार? नहीं तो क्यों वो देगा? डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा वो। क्यों 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 कर देगा ऐसा? क्यों आपके दिमाग में ऐसा उटपटांग चीज क्यों आया? ऐसा क्यों है? क्यों आया? अच्छा, क्यों आया? कहीं भी और दे दो पूरा डिफॉल्ट कर देगा। हाँ एग्जैक्टली, ये ऑप्शनल है। अब ये रिक्वायर्ड नहीं रहा, ये ऑप्शनल रहा, है ना? सो इंडियन की जगह अब आपका अमेरिकन। समझ रहे हो? समझ गया। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स ऐसे ऐसे काम करता है। ठीक है, 1 मिनट गए हैं। ओके, सो सॉरी। सो अब जो हम लोग लास्ट टॉपिक का मतलब ये कीवर्ड आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू कवर अ कीवर्ड आर्गुमेंट। ऐसा ही लग रहा था, मैंने एडिशनल कॉपी पेस्ट कर लिया। तो जो बात कर रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हटाते हैं। चलो भाई, ये आर्क्स वाला मैं बाद में कवर करूंगा, काफी बड़ा टॉपिक है, बड़ा भी नहीं है लेकिन है, अभी इतना यूज में नहीं आएगा। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। ठीक है, और और ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स की बात करें, यही उठा लेते हैं, एक ही चीज को उठाते हैं बार बार, लेकिन आपको यूज केसेस खुद बनाने होंगे। और ये सारी चीजें आप ना कहाँ इंप्लीमेंट करोगे? मैंने क्या बोल दिया,
अपने उसमें, कौन से वाले, जो गेम बनाए थे हमने, रॉक पेपर सीजर और वो क्विज कंपटीशन, वहां ये सारे अप्लाई करोगे। मैं वो देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे इसको यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यार, इसके लिए कुछ अलग बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर दिस थिंग। तो इसके लिए कुछ अलग बनाते हैं, अलग इन द सेंस कि इसको कीवर्ड आर्गुमेंट, इसके लिए सिंपल सा लेते हैं कि हमने मान लो डेफ 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 क्या ले सकते हैं। इसके लिए लिख देते हैं एम्प्लॉय, नहीं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिटेल, ऐसा कुछ फंक्शन बना दिया मैंने, एम्प्लॉय डिटेल। तो अगर मैं, तो ये मेरे को कुछ अच्छी तरीके से लिख के दे देगा, प्रिंट ऐसे कर देगा कुछ, जैसे कि एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए। सो हम लिखेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज इज व्हाट इज, हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। और ये भी लिख देते हैं और लिख देंगे एंड हिज एज इज, हिज एज इज, और हमने इसको दिखा दिया दो कर्ली ब्रेसेस में। और अच्छा, मल्टी लाइन यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, याद है क्या? escape ऐसे काम करेगा ये? कर रहा है भाई, escape कैरेक्टर, इफ यू रिमेम्बर, है ना? एंड हिज सैलरी, सैलरी इज समथिंग, ऐसे कुछ दिखाएगा अगर हम जब भी इस फंक्शन को कोई भी एम्प्लॉय की डिटेल पास करेंगे, है ना? तो ये मेरा एक फंक्शन है जिसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। बैक आ गए, और अभी ये जो मेरा एम्प्लॉय डिटेल है, एम्प्लॉय डिटेल है, एम्प्लॉय डिटेल है, ठीक है। अभी ये कैसा, विदाउट ऑर्गन, इसको हम तीन चीजें पास करेंगे। इसको हम एक पास कर रहे हैं, नेम और एज और सैलरी, ऐसा कुछ दे रहे हैं। तो अभी इसको एक बार चला के देते हैं, अभी तो ये मेरा एज अ रिक्वायर्ड की तरह काम करेगा। जैसे मैंने इसको पास कर दिया संदीप, संदीप, और पास कर दिया इसकी एज, संदीप की एज 67, सॉरी यार, यंगर दिखाते थे 28, संदीप भी बोल रहे हैं, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। एंड सैलरी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक करोड़ों में होंगी, um, कितना दिखा दूँ, 5 लाख, ठीक है। देखो 100 करोड़। So if I'm running, so syntax error, can you guys help me? क्या बोल रहा है syntax error? Can anyone tell me syntax error क्या है इसमें? End of line while scanning string literal, line number 7 में बता रहा है। ये एज को वो स्ट्रिंग्स में लगा देते हैं। एज में string नहीं, अच्छा, एक ही को डिफाइन किया आपने, ओके। नहीं नहीं, एक कोई नहीं दिया। F string empty expression not allowed। अच्छा, ये इसको एज ए empty ट्रीट करेगा। Script character, string literal, line number 7 में नहीं चाहिए था, मतलब देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय डिटेल, संदीप दिया, 28 दिया, 5 लाख दिया। एम्पिटी एक्सप्रेशन नॉट अलाउ, कहाँ पे एम्पिटी एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउ? हाँ, गड़बड़ी कर रहा है यार, मैं भी। एम्प्लॉय डिटेल हो गया मेरा, नेम इज सैलरी, नेम ऑफ एम्प्लॉय इज ये, इस एज इज इतना,
आह फक दिल्ली नहीं, कभी कभी वैसा हो जाता है समझ में नहीं आती चीजें, मतलब मिस माइंड कहीं और होता है। ठीक है, कूल। हाँ, अब क्या हो गया भाई? एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, एस्केप करेक्टर काम नहीं कर रहा है क्या? अच्छा, ये दे दो। नो, अभी भी सो नेम ऑफ एम्प्लॉय, लेकिन यार इसको नेक्स्ट एस्केप करेक्टर को एक बार देख लेना यार, कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है, नेम ऑफ एम्प्लॉय ये ब्ला ब्ला, इसको इतना स्पेस मत दो। ठीक है, तो अभी तक ये एज अ रिक्वायर्ड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हमें तीन आर्गुमेंट है तो तीन दे रहे हैं। ठीक है, नेम इज सैलरी, नेम इज सैलरी। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, तीन पास किए, अगर एक भी ना पास करूं तो ये मेरे लिए काम कर जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट क्या है कि अगर मान लो मैंने सैलरी डिफॉल्ट कर दी कि सारे बंदों को हम 15,000 ही देते हैं, तो डिफॉल्ट के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ऐसे 9,000 लिख दूंगा। इन केस अगर मान लो अदर, जैसे संदीप की तो सैलरी डिफाइंड है, अदरवाइज कंपनी क्या करती है और एम्प्लॉयज को कितना दे देती है, 9,000 देती है। अगर जिनकी सैलरी नहीं बता रही, तो उनकी उनकी सैलरी बाय डिफॉल्ट कितनी आ जाती है, मान लो 9,000 आती है। ठीक है, ऐसा रहता है। और जैसे चिराग पंकज की सैलरी बताई नहीं गई है, तो उनकी सैलरी गवर्नमेंट उन लोगों ने कितनी कर दी बाय डिफॉल्ट, 9,000। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं काम। ठीक है, तो अगर देख रहे हैं संदीप की 5 करोड़ है बाकी, तो यहाँ पे हमने एक अच्छा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं डिफॉल्ट आर्गूमेंट का और रिक्वायर्ड आर्गूमेंट का। दो तो चाहिए चाहिए। ठीक है, अगर एक और कम कर दिया ना तो ये हमें एरर दे देगा, क्योंकि रिक्वायर्ड। अब आता है इसमें कीवर्ड आर्गूमेंट। कीवर्ड का क्या पर्पस होगा यार? तो कीवर्ड का क्या होता है ना कि कभी कभी क्या पता, अगर मान लो संदीप ने क्या किया, एज आगे दे दी 28, तो संदीप का पर्पस तो सही था, लेकिन संदीप ने गलती कर दी कि उसने अपने एज को आगे दे दिया। तो अब क्या होगा इसमें देखो, अब आ रहा है नेम ऑफ एम्प्लॉयज 28, हिज एज इज संदीप एंड हिज सैलरी इतना मिला। समझ रहे हो? अगर उसने आर्गुमेंट को आगे पीछे दे दिया ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड ही डिफाइन कर दो ना, तो ये एज, अब चाहे तुम इसको आगे लिखो पीछे लिखो कहीं पे भी लिखो, ये जाएगा तो एज को ही जाएगा, और ये नेम को जाएगा, ये नेम वेरिएबल को जाएगा। तो अब ये सही से काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि संदीप को अलग प्रिंट करवा रहा है। अभी ये आया पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। तो अब यहाँ पे कुछ पता चला आपको, जो पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट को। ये पता चला आपको कि इसमें जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स होंगे, मतलब जो पोजिशनल आर्गुमेंट्स होंगे, तो वो कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो करते हैं। अब कीवर्ड आर्गू, पोजिशनल आर्गुमेंट, नेम दे दिया मैंने, एज, एज, एक मिनट, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट मेरे ये हो गए, और पोजिशनल सेव नहीं हुआ क्या, इसको हटा दो। ये मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट है, ये कंफ्यूज कर गया है, इसको ना आपको आगे लिखना होगा। अभी बोल रहा हूँ मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट कहाँ है, ये मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट है। तो ध्यान रखना कि आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स को कहीं पे भी दो, लेकिन सबसे पहले आपको पोजिशनल आर्गुमेंट लिखने ही लिखने होंगे। समझ रहे हो? तो अगर देखो, इसको चलाया हमने, गॉट मल्टीपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट नेम। अच्छा सॉरी यार, अभी तुम ना डिफॉल्ट को हटा दो। तो अभी अभी मैं ना सिंपल पर्पज से सिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी दी थी, ठीक है, अब आगे पीछे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब इसको चलाते हैं, तो ये काम कर रहा है परफेक्टली। नेम को मैंने लास्ट में दे दिया, एज को बीच में दे दी, सैलरी को, तो ये तो उसी की तरह काम कर रहे हैं जो हम चाहते थे, कीवर्ड आर्गुमेंट।
ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट चाहते थे, तो हर एक कीवर्ड को एक आर्गुमेंट असाइन हो गया। अगर इन केस अगर मैं ये ना दूं तो वो क्या बोल रहा है, 28। अब यहाँ पे वो एक एरर देगा कि फॉलो करनी चाहिए, तो ये आपको बोल रहा है गॉट मल्टीपल वैल्यू। तो आपको क्या करना होगा, ये एज को आपको आगे लिखना होगा। आपने बता दिया है कि मेरे जो बाद के दो है ना वो कीवर्ड आर्गुमेंट है, और जो पहला वाला है ना वो मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट है, ध्यान में बस रखना। ठीक है, जो पहला वाला होगा वो मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट होगा, बाद वाले को मैंने आगे पीछे कर दिया है, तो वो एज अ कीवर्ड ट्रीट करेगा। तो ये अचीव करना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो कीवर्ड में आप क्या बेनिफिट होगा कि आर्गुमेंट की जो पोजीशन होगी ना वो आप आगे पीछे कहीं पे भी दे सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, अब आगे आ जाते हैं ऊपर हम लोग। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब ये आया फंक्शन। अब जो दो टाइप और हैं इसको हम क्विकली कवर कर लेते हैं। दो नहीं है, तीन, लास्ट ही समझो आप। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। अभी तक हमने फंक्शन जितने भी थे विदाउट रिटर्न टाइप देखे थे, विद रिटर्न टाइप फंक्शंस हमने अभी तक देखे नहीं थे। ठीक है, सो लेट्स कवर दिस टॉपिक क्विकली, एंड देन आफ्टर दैट वी विल क्लोज अवर सेशन। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फंक्शंस में हमने बहुत काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें कवर कर ली है, तो इसको रिकॉल करने के लिए आपको शायद टाइम चाहिए होगा। तो लास्ट वाला है, वी आर गोइंग टू कवर दिस वन, फंक्शन विद रिटर्न टाइप। विद रिटर्न फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। और ऐसा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, चौथी कंडीशन भी हो सकती है। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है पंकज? चौथा कंडीशन भी लिखो आप गलत लिख रहे हो, आप बच्चों को गलत मत बताओ। आप यहाँ कर दो विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, हम दोनों अचीव करेंगे। ठीक है, इसको 4 लिख लो। ठीक है, कॉपी, इन दोनों को हम एक ही जगह अचीव करेंगे। पहले एक ही जगह पढ़ लेते हैं कि यार पंकज क्या बताना चाह रहे हो आप इस वाले में। So I'm gonna delete this one. So guys, इसमें क्या है, पहले बनाते हैं। जैसे मैंने ना एक बनाया मैंने हेलो का, हेलो 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 का एक हेलो नाम का एक फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर में ना रिटर्न, इसमें जो कीवर्ड यूज होता है ना वो रिटर्न यूज होता है। तो इसमें रिटर्न हम क्या कराएंगे, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ना ये फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करके देगा। इंडेंटेशन का यूज ही नहीं किया, बहुत गलत बात। रिटर्न, तो ये रिटर्न करके देगा हेलो इंडिया एंड अमेरिकन्स। ये ऐसा स्ट्रिंग हमको रिटर्न करके देगा जब भी मैं इसको कॉल करूंगा। तो ये मेरा है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। अगर मैं इसको कॉल करूंगा ना तो जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मेरे को रिटर्न देगा। देखो हेलो इंडिया एंड अमेरिकन, ये प्रिंट नहीं करवा रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। समझ रहे हो? अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं तो कुछ भी नहीं होगा। मैं मान लो इसमें, मैं मान लो किसी रिजल्ट में स्टोर कर लिया, देखो तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? तो कुछ नहीं आया आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखता, यहाँ प्रिंट करता, तब तो कर देता। चाहे चाहे तुम उसको वेरिएबल में स्टोर कराओ या ना कराओ, चाहे तुम उसको वेरिएबल में स्टोर कराओ या ना कराओ, ये फंक्शन अपनी एक्टिविटी कर देता। ये देखो फंक्शन ने प्रिंट तो कर दिया। रिटर्न टाइप के केस में क्या होता है, ये फंक्शन रिटर्न नहीं है। अभी इस रिजल्ट में आ क्या रहा होगा, याद है बार बार नन आ रहा था। समझ रहे हो? तो ये फंक्शन क्या है, विदाउट रिटर्न टाइप है। तो जो फंक्शन कुछ देता नहीं है ना वो क्या देता है, नन देता है। अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था वो नन रिटर्न कर रहा था, तो आपने देखा होगा वहां नन नन आ रहा था उस टाइम पे। तो इसने देखो हेलो इंडिया तो प्रिंट करवाया जो उसके अंदर काम हो रहा था, लेकिन ये फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप था, कुछ दे नहीं रहा था। लेकिन कोई भी फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप होता है तो वो नन देता है, तो उस नन को हम प्रिंट करवा रहे हैं। खोटे, तो हम लोगों को तो अचीव क्या करना है, रिटर्न टाइप, कि भैया हमारा फंक्शन रिटर्न करे। अब रिटर्न कर रहा है ना तो इसमें नन नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ एक बार ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन ने ये रिटर्न दिया और ये रिटर्न रिजल्ट में गया और रिजल्ट आप प्रिंट करवा रहे हो। तो आप देख रहे होगे तो वन टाइम ही प्रिंट हो रहा है। और ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हो कि
ठीक है, हम फंक्शन कॉल करवा रहे हैं और वो फंक्शन प्रिंट पे हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा क्या है, विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप है। गॉट इट? विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा विद आर्गुमेंट हो, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेम, सॉरी यहाँ लिख दूं नेम, ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ और इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पंकज। पंकज आ लिख दिया, पंकज आ, पंकज लिख देता हूँ, पंकज। तो हेलो, हेलो पंक, हेलो इंडियन, हेलो, हेलो 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 पंकज, नेम लिख दिया। तो अब ये रिटर्न कर रहा है, ये विद आर्गुमेंट विद रिटर्न। अब ये वाला क्या प्रिंट करता है, ये देखो। इसने नहीं प्रिंट किया। बता सकते हो क्या करना होगा इसको करेक्ट करने के लिए? क्या गलती हुई और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? एक एक चीज करना है और ये करेक्ट हो जाएगा। डिफाइन नहीं लिखा ना क्या क्या डिफाइन? क्या प्रिंट करना ना RES। हेलो पंकज आना चाहिए था ना, ये हेलो नेम क्या आ रहा है? यार इतना पढ़ लिया, अगर तुमने ये इसको भी नहीं करेक्ट कर पा रहे हो ना, तो भाई अब डेंजरस है। मतलब अलार्म है आप लोगों के लिए कि आप लोग कोडिंग ढंग से नहीं कर रहे हो यार, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। अगर आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, खत्म। कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आप ये नहीं करेक्ट कर रहे हो ना, तो इट्स अलार्म फॉर यू गाइस। मतलब कोडिंग फिर तो बहुत टफ हो जाएगी, आप लोग डिपेंडेंट हो जाओगे मेरे पे कि हाँ पंकज यार अब यहाँ इसका कोड कैसे बनाए, इसका कैसे बनाए। इट विल बी डिजास्टर फॉर यू गाइस। रेस्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया ना आपने रेस्ट को। ये हेलो पंकज बोल रहे हो लेकिन रेस्ट इज इक्वल टू हेलो। रेस्ट को डिफाइन नहीं किया? नहीं समझ में आया। वो फंक्शन मेरे को रिटर्न कर रहा है, रेस्ट में जा रही है वैल्यू। ये लिख देता हूँ मैं। ये फंक्शन था विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्गुमेंट। तो ये आ रहा था हेलो पंकज, आ रहा था ना। मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, इसने मेरे को रिटर्न किया हेलो पंकज, और उसने हेलो पंकज को प्रिंट करवा दिया। ये क्यों नहीं करवा रहा है? इसको तो मैंने रिटर्न टाइप बना दिया बस, विद आर्गुमेंट बना दिया। सारा फंक्शन था, ये था विद, विदाउट आर्गुमेंट, ये विद आर्गुमेंट था। इसमें हार्ड कोड किया हुआ था। ये फंक्शन हर बार मेरे को जितनी बार कॉल करूंगा हेलो को, हर बार हेलो पंकज देगा। लेकिन ये वाला फंक्शन कैसा है कि जितनी बार कॉल करूंगा डिफरेंट नेम से उनको ग्रीट करेगा ये। तो ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? डिजास्टर। नीचे वाला तो जितनी बार कॉल करूंगा हर बार हेलो पंकज ही बोलेगा, लेकिन ऊपर वाला ऐसा है, विद रिटर्न विद आर्गुमेंट है। तो जितने नाम उसमें पास करूंगा उतने उनको ग्रीट करेगा हेलो। मतलब अगर 10 बार देता तो मेरे को 10 बार, मतलब हेलो उसके अंदर संदीप लिखता है, हेलो पंकज, तो सबको ग्रीट करता है हेलो पंकज। लेकिन इसमें अगर मैं 10 बार कॉल करूंगा हेलो, 10 बार वो पंकज प्रिंट करेगा। चलो इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं। आप सोच रहे हो ये साला ये रेस्क है, लो और इजी कर देता हूँ। अब बता दो यार, अब हेल्प कर दो मेरी। लो मैं इसको और इजी कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरी हेल्प करो आप। ये कंफ्यूजन ही हटा दिया मैंने, ठीक है, ये कंफ्यूजन ही हटा दिया, और इसको इसको हटा दे। ये कंफ्यूजन ही हटा दिया मैंने। अरे साला कॉपी भी नहीं होता है, कॉपी।
कितने नाम दूं? संदीप, राहुल, विनय। ये सबके लिए गड़बड़ करता जा रहा है। तो सबके लिए हेलो हेलो नेम, अगर यही काम मैं यहाँ करूँ। अलार्म है भाई, अगर आप लोग ये हल्का सा इश्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इ- इस वाले केस में क्या होगा? इतनी बार फंक्शन को कॉल करूंगा, ये हर बार मेरे को पंकज ही देगा, क्योंकि मैंने इसको बनाया है ऐसा। देख रहे हो, ये हर बार मेरे को पंकज ही दे रहा है, मैं इसको 10 बार कर रहा हूँ, ऑब्वियसली देगा ही। आर्गुमेंट में डिफर, मैं चाह रहा हूँ, मैं इसको वैसा बनाना चाहता हूँ, पंकज संदीप बुला बुला बुला। तो आप बताओ यार, चलो हटा दिया मैंने रिजल्ट। अब बताओ, अब हेल्प करो। भाई इसलिए बोल रहा हूँ हैंड्स ऑन करो, आप लोग नहीं कर रहे हो। ये तो हेलो पंकज आ गया सारा, ये क्यों नहीं आ रहा भाई? ये तो हेलो नेम ही दे रहा है, क्या दिक्कत है इसमें भाई? यार कैपिटल एच है वो। कैपिटल नहीं एच है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। अरे यार, चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आना था बस एफ, खत्म, काम हो गया हमारा। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ाया था। ट्रेड करने लग गया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ यार, प्रैक्टिस करो आप लोग, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा चीज़ों को आप डिबग करना है सब। बस मैंने एक एफ लगाया, काम हो गया मेरा। तो ये मेरे को एक एफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर जिसके लिए काम करने लग गया। कूल। सो ये हमारा था फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, जो नीचे वाला देखा था, और ये था फंक्शन विद आर्गुमेंट। तो एक ग्रीड का एग्जांपल देखा था कि हम लोग कैसे ग्रीड कर पा रहे हैं। गॉट इट? So here I'm gonna take a pause, guys. I'm just stopping this recording. Thank you so much. And please, I'll for there is a one thing is still left. That is arcs and quarks. Okay, arcs and quarks. So I'll give you the link, and I'll give you the link of that video, arcs and quarks. We can save our time. आप उसको उस वीडियो को देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल में, तो आपको समझ में आ जाएगा आर्क्स क्या है और क्वार्क्स क्या है। और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे मक्खन तरीके से बताया है। तो हम टाइम अपना काफी हद तक सेव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो उस वीडियो को देख के भी नहीं आ रहा है समझ में, तो आई कैन टेक अ सेशन ऑन आर्क्स एंड क्वार्क्स, और वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।